یہاں پر آپ کو بتائیں کہ 40 سال انتظار ختم ہو گیا۔ پاکستان نے 40 سال بعد اولمپکس مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے جیولن تھرو کے فائنل میں تاریخ کی لمبی ترین تھرو کر کے نہ صرف ریکارڈ قائم کیا بلکہ گولڈ میڈل بھی جیت لیا ہے۔ ارشد ندیم نے پہلی تھرو ضائع ہونے کے باوجود ہمت نہ ہاری اور دوسری تھرو 92.97 میٹر پھینک کر ریکارڈ قائم کرنے کے ساتھ گولڈ میڈل بھی جیت لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 40 سال انتظار ختم ہو گیا۔ پاکستان نے 40 سال بعد اولمپکس مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے جیولن تھرو کے فائنل میں تاریخ کی لمبی ترین تھرو کر کے نہ صرف ریکارڈ قائم کیا بلکہ گولڈ میڈل بھی جیت لیا ہے۔ ارشد ندیم نے پہلی تھرو ضائع ہونے کے باوجود ہمت نہ ہاری اور دوسری تھرو 92.97 میٹر پھینک کر ریکارڈ قائم کرنے کے ساتھ گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ 40 سال انتظار ختم ہو گیا۔ پاکستان نے 40 سال بعد اولمپکس مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے جیولن تھرو کے فائنل میں تاریخ کی لمبی ترین تھرو کر کے نہ صرف ریکارڈ قائم کیا بلکہ گولڈ میڈل بھی جیت لیا ہے۔ ارشد ندیم نے پہلی تھرو ضائع ہونے کے باوجود ہمت نہ ہاری اور دوسری تھرو 92.97 میٹر پھینک کر ریکارڈ قائم کرنے کے ساتھ گولڈ میڈل بھی جیت لیا ہے۔ 40 سال انتظار ختم ہو گیا۔ پاکستان نے 40 سال بعد اولمپکس مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے جیولن تھرو کے فائنل میں تاریخ کی لمبی ترین تھرو کر کے نہ صرف ریکارڈ قائم کیا بلکہ گولڈ میڈل بھی جیت لیا ہے۔ ارشد ندیم نے پہلی تھرو ضائع ہونے کے باوجود ہمت نہ ہاری اور دوسری تھرو 92.97 میٹر پھینک کر ریکارڈ قائم کرنے کے ساتھ گولڈ میڈل بھی جیت لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 40 سال انتظار ختم ہو گیا۔ پاکستان نے 40 سال بعد اولمپکس مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے جیولن تھرو کے فائنل میں تاریخ کی لمبی ترین تھرو کر کے نہ صرف ریکارڈ قائم کیا بلکہ گولڈ میڈل بھی جیت لیا ہے۔ ارشد ندیم نے پہلی تھرو ضائع ہونے کے باوجود ہمت نہ ہاری اور دوسری تھرو 92.97 میٹر پھینک کر ریکارڈ قائم کرنے کے ساتھ گولڈ میڈل بھی جیت لیا ہے۔ 40 سال انتظار ختم ہو گیا۔ پاکستان نے 40 سال بعد اولمپکس مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ مزید بتائیں گے محمد اسامہ۔ جی اسامہ بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان کا 40 سالہ انتظار ختم ہوا اور 40 سال بعد پاکستان نے کسی اولمپک میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، لیکن اس سے پہلے 32 سال تک پاکستان نے کوئی بھی میڈل نہیں جیتا تھا۔ آخری مرتبہ 1992 میں پاکستان نے برونز میڈل جیتا تھا، لیکن پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کرتے ہوئے سب سے لمبی جو تھرو ہے وہ کی ہے 92.97 میٹر کی تھرو کر کے انہوں نے گولڈ میڈل پاکستان کے لیے حاصل کیا۔ نہ صرف یہ تھرو ان کی پرسنل بیسٹ ہے بلکہ اولمپکس کی 118 سالہ تاریخ کی سب سے لمبی تھرو ہے، جو ورلڈ ریکارڈ بھی بن گیا ہے اور پیرس اولمپکس میں انہوں نے گولڈ میڈل لے کر پاکستان کا نام روشن کیا ہے، کیونکہ پاکستانی دستے میں صرف ارشد ندیم ہی ایسے ہیں جنہوں نے گولڈ میڈل یا کوئی بھی میڈل حاصل کیا ہے۔ پاکستان کا 7 رکنی دستہ جو ہے وہ 6 ایتھلیٹ جو ہیں انہوں نے کوئی بھی میڈل نہیں لیا اور 32 سال کا انتظار جو ہے وہ پاکستان کا ختم ہوا اور ارشد ندیم نے جو ہے وہ گولڈ میڈل حاصل کر کے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ قومی کرکٹرز، سیاستدان اور دیگر جو ہیں وہ ان کی طرف سے مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہے اور ارشد ندیم نے ہے وہ شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لیا ہے۔ جی ٹھیک ہے اسامہ، شکریہ آپ کا۔ مرغی کا گوشت بدستور غریب کی پہنچ سے دور ہے۔ فی کلو گوشت کی قیمت 594 روپے کلو کی سطح پر برقرار ہے۔ زندہ برائلر کی قیمت 410 روپے فی کلو مقرر۔ 2 روپے اضافے سے انڈوں کی فی درجن قیمت 274 روپے ہو گئی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8100 روپے کی فروخت کی جا رہی ہے۔ مزید بتائیں گے عبدالقادر۔ جی عبدالقادر سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مرغی کا گوشت بدستور غریب کی پہنچ سے دور ہے۔ فی کلو گوشت کی قیمت 594 روپے کلو کی سطح پر برقرار ہے۔ زندہ برائلر کی قیمت 410 روپے فی کلو مقرر۔ 2 روپے اضافے سے انڈوں کی فی درجن قیمت 274 روپے ہو گئی۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8100 روپے کی فروخت کی جا رہی ہے۔ مرغی کا گوشت بدستور غریب کی پہنچ سے دور ہے۔ فی کلو گوشت کی قیمت 594 روپے کلو کی سطح پر برقرار۔ زندہ برائلر کی قیمت 410 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ بجلی مزید مہنگی۔ نیپرا نے بجلی کے نرخوں میں 2 روپے 56 پیسے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا ہے۔ قیمتوں میں اضافہ جون کی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا ہے۔ نیپرا نے نرخوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ماہ جون کے لیے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ
बिजली की कीमतों में ₹2.56 फी यूनिट का इजाफा। नेपरा ने निर्खों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक तमाम सार्फिन, मास वाइल लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सार्फिन पर होगा। तफसीलात के मुताबिक निर्खों में इजाफे के बायस सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया। जून की शदीद गर्मी में भी बिजली की तलब में कमी हुई। CPPA के मुताबिक जून के लिए 15 अरब यूनिट्स का तखमीना लगाया गया था, लेकिन सिर्फ 13 अरब 7 करोड़ यूनिट बिजली फरोख्त हुई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ कहते हैं, बानी PTI ने मईशत माशरत को बर्बाद कर दिया। सारे नुमाई के किरदारों ने किसी इदारे को नहीं छोड़ा। आपने खुद कहा था कि मुझे गिरफ्तार किया गया तो लोग जवाब देंगे। क्या नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर हमने इदारों पर हमले किए? बानी PTI को अपनी गलतियों पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। माल्टन पार्टी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने बानी PTI की जानिब से मशरूत मुआफ़ी के ऐलान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि आपने खुद कहा था रेंजर्स या फौज गिरफ्तार करेगी तो जवाब लोग देंगे। बानी PTI कहते हैं, हमने ज़मान पार्क में पेट्रोल बम इस्तेमाल किए। एक शख्स के नामा अमाल में सिर्फ एक माफ़ी नहीं है, गैर मशरूत माफ़ी मांगने वाले के सामने सबूत मौजूद हैं। आपने खुद ये बात की थी कि मुझे अगर रेंजर गिरफ्तार करेगी, फौज गिरफ्तार करेगी तो लोग जवाब भी उसी को देंगे। एक ऐसा शख्स जिसके नामा एमाल में एक माफ़ी नहीं, जो आप कह रहे हो कि जनाब मैंने तो ज़मान पार्क में सिर्फ पेट्रोल बम इस्तेमाल किए। जावेद लतीफ़ बोले, पाकिस्तान के अंदर आज दोबारा दहशत गर्दी करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। इंदिया दिया जा रहा है कि कोई बड़ा वाक़या हो सकता है। बिजली व गैस के बिल आवाम की पहुँच से बाहर हो गए हैं। हुकूमत इस मसले को फौरी हल करे, ऐसा ना हो कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें और इंतशारी टोला फ़ायदा ना उठा लें। गैस बिजली के बिल देने की सख्त नहीं है और ये कोई ना कोई हादसे का सबब चीजें बन सकती हैं अगर इनको ड्रेस ना किया गया, अगर ये हकायक कौम के सामने ना रखे गए कि इसका असल कसूरवार कौन है। रहनुमा मुस्लिम नून ने मजीद कहा कि वो जेल में बैठा आज बांग्लादेश के साथ पाकिस्तानी हालात की मुमासलत कर रहा है। बांग्लादेश में तो बैरूनी मुदाखलत बंद करने के लिए तलबा सड़कों पर आए। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं, पंजाब हुकूमत सेहत और तालीम पर मुकम्मल फोकस किए हुए है। तमाम हस्पतालों के अपग्रेडेशन का काम हो रहा है। कोट ख्वाजा सैयद हस्पताल के शुमाली लाहौर के लोगों के लिए खिदमत काबिल कदर हैं। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान का कोट ख्वाजा सईद अस्पताल का दौरा, रीवैम्प की गई बिल्डिंग का मुआयना किया, अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स और सहूलियात का जायजा लिया, नए बनने वाले ऑपरेशन थिएटर का मुआयना भी किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था, इस अस्पताल को लोग मियाँ नवाज शरीफ के नाम से जानते हैं। 2 मिलियन शिमाली लाहौर की आबादी यहाँ से मुस्तफीद होती है। पंजाब के तमाम अस्पतालों की अपग्रेडेशन का काम भी हो रहा है। थ्रू आउट पंजाब में इस वक्त तमाम हॉस्पिटल्स हमारे जो हैं वहाँ पे जो अपग्रेडेशंस हैं, जो वहाँ पे इक्विपमेंट की ज़रूरत है, मशीनरी की ज़रूरत है, हमारे DHQs, THQs और हमारे जो BHUs हैं, वहाँ पे हर जगह इस वक्त जो है बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। मुश्तबा शुजाउर रहमान का मजीद कहना था कि 1 साल में तमाम सरकारी अस्पतालों को मुकम्मल अपग्रेड करेंगे। सेहत और तालीम अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर पंजाब और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी पंजाब सैयद अली हैदर गिलानी ने मुलाकात की। पंजाब के इंतजामी और सियासी अमूर पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब ने अली हैदर गिलानी को बताया कि वो बिलावल भुट्टो की हिदायत के मुताबिक पंजाब में पीपल्स पार्टी का गिराव अब करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों के दौरे कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जियालों और आम आवाम के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। गवर्नर पंजाब ने अली हैदर गिलानी को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मेंबर पंजाब असम्बली सारा अहमद की जानिब से पंजाब असम्बली में करारदाद जमा महबूद आबादी के हवाले से आगाही मुहिम चलाने की दरख्वास्त की गई है। करारदाद के मतन के मुताबिक पाकिस्तान अपनी तेज़ी से बढ़ती आबादी की वजह से दुनिया में 5वें नंबर पर आ चुका है। मौजूदा आबादी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो 2050 में पाकिस्तान की आबादी दुगना हो जाएगी। पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बढ़ती आबादी के संगीन मसाइल से दो चार है। मतन के मुताबिक बच्चों पर तशद्दुद, इत्तेसाल और ज़्यादती बढ़ती हुई आबादी की वजह से है।
है। आबादी में तेज़ी से इजाफे की वजह से गुर्बत और जराइम में इजाफा और ज़चा बचा की सेहत जैसे मसाइल पैदा होते हैं। ऐवान के ज़रिए हुकूमत पंजाब से गुजारिश करती हूँ कि जो हुकूमती महकमे बहबूद आबादी पर काम कर रहे हैं वो इस बारे में आगाही मुहिम चलाने पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। उर्दू बाजार के ताजर सेल्स टैक्स के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मज़ीद बड़ी कॉल देने का इंदिया दे दिया है। कहते हैं फिक्स सेल्स टैक्स काबिल कबूल नहीं। अगली कॉल पर लाहौर के साथ साथ मुल्क भर में कारोबार बंद होगा। स्टेशनरी आइटम पर सेल टैक्स के निफाज के खिलाफ महाज ठंडा ना हुआ। उर्दू बाजार के ताजरों ने एक दिन की हड़ताल के बाद बड़ी हड़ताल का इंदिया दे दिया। स्टेशनरी एसोसिएशन के नायब सदर मोहम्मद आबिद का कहना है सेल्स टैक्स के बाद तमाम स्टेशनरी आइटम्स महंगी हो गई हैं। फिक्स सेल टैक्स काबिल कबूल नहीं। अल्लाह को हमसे कि इस जालमाना टैक्स को ख़त्म किया जाए। इसके अलावा जो हम पे इन लोगों ने फ़िक्स टैक्स लगा दिया वो भी ख़त्म किया जाए। उर्दू बाज़ार में तकरीबन 10,000 रुपये से फ़िक्स टैक्स शुरू होगा। इस बात की आज तक समझ नहीं आई। दुकानें हमारी हैं, मेहनत हम लोग करते हैं, सारा दिन हम अपने काम को अंजाम देते हैं और महीने के एंड पे इन्हें 10,000 रुपये दें और हर महीने दें, यानी साल का आपने 1,20,000 रुपये देना। ये गवर्नमेंट की ये बातें हमें समझ नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह अभी बड़ी स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं जो पूरी पाकिस्तान में बल्कि लाहौर से शुरू होकर पूरे पाकिस्तान तक जाएगी। ताजिर रहनुमाओं ने कहा कि अगली हड़ताल में पहले लाहौर और उसके बाद पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। विफाक की जानिब से बिजली के बिलों समेत फिक्स टैक्स के निफाज के खिलाफ ताजिर बरादरी मुतहिद हो गई। बीटर रोड के ताजरों ने मुजाहिद मकसूद भट्ट की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा किया। तफसीलात के मुताबिक ताजिर बरादरी ने बिजली के बिलों समेत फिक्स टैक्स के निफाज के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया। उर्दू बाजार के बाद बीटर रोड के ताजिर भी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिद मकसूद भट्ट की क़यादत में ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फीकस दुकानदार पर फिक्स टैक्स लागू करने को ताजरों को मुआशी तौर पर कंगाल करने का मंसूबा करार दिया। मार्केट के दीगर ताजरों ने बिजली के इजाफी टैक्स वसूल को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा किया। ताजरों ने मुतालिबात पूरे न होने की सूरत में मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। एहतजाज में ताजरों ने बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पोस्टर भी उठा रखे थे। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों और क्वालिटी रोज़ाना मॉनिटर हो रही है। चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने कहा है कि 2000 से ज़्यादा मकामात पर प्राइस इंस्पेक्शन कार्रवाइयाँ की, 8 गिरफ्तारियाँ और 8 मुकदमात का इंदराज किया गया है। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल से चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल फोर्स सलमा भट्ट की मुलाकात। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को मुतहरिक करने का फैसला। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि नाअहल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से इख्तियारात वापस लेकर पीडा के तहत कार्रवाई की जाए। सलमा भट्ट ने कहा कि अशाए ज़रूरिया की कीमतें आम आदमी की कुव्वत खरीद में रखना हमारा मिशन है। इंतजामी अफसरान खुद फील्ड में निकलें और प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की निगरानी करें। मार्केट में सप्लाई और डिमांड पर नजर रखी जाए। डीसी राफे हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स के सरप्राइज दौरे, मुख्तलिफ स्टोर्स और चिकन स्टॉल्स को जुर्माने, मुतअद्दिद दुकानदारों को वार्निंग दे दी गई। सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में कमी का रुझान जारी है। मकामी सराफा मार्केट में सोना 300 रुपये तोले तक सस्ता हो गया है। 24 कैरेट खाली सोने की कीमत 2,55,800 रुपये से कम होकर 2,55,500 रुपये तोला हो गई है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 2,34,100 रुपये तोला और 21 कैरेट सोना 2,23,350 रुपये तोला कर दिया गया है। चांदी की कीमत 2,880 रुपये तोले पर बरकरार है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने प्राइस चेकिंग के लिए शहर का दौरा किया। दुकानों पर सरकारी निर्खनामों की फहरिस्तों की मौजूदगी को खुसूसी तौर पर चेक किया। कमिश्नर लाहौर ने सिंहपुरा मंडी और हरबंसपुरा मार्केट के दौरे के दौरान सब्जियों और फलों के मायार और कीमतों का जायज़ा लिया। ज़ैद बिन मकसूद का कहना था सरकारी निर्खनामों हर दुकान और रेहड़ी पर आवेज़ा होना चाहिए। कमिश्नर ने कहा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी और कीमतों पर कंट्रोल के लिए मेकनिज़म को मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। डीजी एलजी ताहिर फारूक का एलजी वन विंडो सेल का दौरा। शिफ्टेड शुदा फाइलों की प्रोसेसिंग में ताख़ीर पर मुतल्लिका अफसरान पर इजहार नाराजगी की। एलडीए ताहिर फारूक का एलडीए वन विंडो सेल का अचानक दौरा। गुज़श्ता 24 घंटों में वन विंडो सेल पर आई दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग का जायजा लिया। प्रोसेसिंग में ताख़ीर पर मुतल्लिका अफसरान पर इजहार नाराजगी। ताहिर फारूक ने कहा कि शहरियों के मसाइल हल न करने वाले अफसरान से जवाब तलबी की जाएगी। अफसरान अपने हदाफ के हुसूल के लिए लाहे अमल बनाएं। डीजी एलडीए ने ठोकर न्याज बेग एंट्री पॉइंट, मुल्तान रोड और मोटरवे साइड का तफसीली दौरा भी किया। चीफ इंजीनियर एलडीए असरार सईद और नेस्पाक अफसरान ने मुजव्वज़ा डिजाइन बारे तफसीली ब्रीफिंग भी दी। डीजी एलडीए का मजीद कहना था कि एलडीए शहर के तमाम अहम तरीन एंट्री पॉइंट की मुरम्मत और बहाली का काम आइंदा चंद रोज में शुरू करेगा। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
पंजाब की सफाई के आउटसोर्स मामले पर कॉन्ट्रैक्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। 3 साल के लिए 393 अरब तखमीना लागत लगाया गया। आउटसोर्स निज़ाम की नीलामी में हुकूमती खामियां रह गईं। सेक्रेटरी बल्दियात को जल्द अज जल्द नीलामी कराने का हुक्म दे दिया। पंजाब भर की सफाई सुथराई का निज़ाम आउटसोर्स करने का मामला, कॉन्ट्रैक्टर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं पहले 3 माह में कोई जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा। तनख्वाहें और मशीनरी की ताख़ीर पर पहले 3 माह कोई पेनल्टी लागू नहीं होगी। महकमा बल्दियात पंजाब ने कॉन्ट्रैक्टर्स की शराइत मान ली। लाहौर डिवीज़न के 3 अजला की सफाई आउटसोर्स करने के लिए 34 अरब तखमीना लागत आएगी। लाहौर डिवीज़न के 3 डिस्ट्रिक्ट की आउटसोर्सिंग की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। लाहौर डिवीज़न के 3 डिस्ट्रिक्ट में 15 कंपनियों ने प्री क्वालिफिकेशन में हिस्सा लिया। 8 कंपनियां प्री क्वालिफिकेशन में कामयाब हुईं। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी का कहना है कि पंजाब भर में सफाई सिस्टम की नीलामी के बाद 3 माह कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जाएंगे। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। वाटर रोड पर ज़ेर तामीर तरक्याती स्कीम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल CBD रियाज हुसैन ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कहना है कि 4 किलोमीटर तवील 6 लेन्स पर मुश्तमिल वाटर रोड सितंबर के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी। वाटर रोड 35% मुकम्मल हो चुकी, जबकि 4.3 किलोमीटर डीप ट्रंक ड्रेन 100% मुकम्मल कर ली गई है। कमिश्नर लाहौर ने वाटर रोड ट्रंक ड्रेन सिस्टम, फ्लाईओवर, डिस्पोजल स्टेशन, राइटर सीवर्स पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वाटर रोड पर राइटर सीवर के बायस नाला भरने से गलियों का पानी वापस मोहल्लों में नहीं जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने CBD को वाटर रोड को डेडलाइन और टाइमलाइंस के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी।